ایک پاکستانی کمانڈو کی سرگزشت، پاک فوج کا جوان، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک جنگجو کی آپ بیتی، بھارتی ایجنسیوں کو ناکوں چنے چبانے والا گوریلا، ایک ایسا بازیگر جسے خوف چھو کر بھی نہ گزرا، ریاض عاقب کوہلر کے قلم سے نکلی ایک لازوال کہانی۔ میر نیاز خان کی بیٹی رضیہ ہماری بیٹھک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ چائے پیئیں گی یا ٹھنڈا؟ وہ بولی نہیں تھینک یو، میں ناشتہ کر کے آ رہی ہوں۔ امجد نے کہا کوئی بات نہیں، ہم غریبوں کی چائے کے لیے بھی تھوڑی گنجائش پیدا کر لیں۔ وہ بولی ٹھیک ہے بھیا، آپ کی بات تو ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ امجد شکایتی لہجے میں بولا جانو کو بھی تو بھائی کہے نا، یا اکیلا میں ہی گناہ گار ہوں؟ وہ بولی نہیں، یہ جانو صاحب ہی ٹھیک ہیں، بلکہ جان ہی فٹ رہے گا۔ کیوں، صحیح کہہ رہی ہوں نا جان؟ اس نے شوق نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کا لہجہ اور انداز دیکھتے ہوئے میں بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری سوچوں میں بے ساختہ شیتل در آئی۔ وہ مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی تھی اور میرے لیے ساری دنیا کو ٹھکرانے پر تیار ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک امکانی سوچ ابھری، اب تو شاید اس کی شادی بھی ہو گئی ہو۔ امجد بولا کن خیالوں میں کھو گئے ہو بھائی؟ مس رضیہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھائی اور آپ کو بھائی جان کہیں گی، سمجھے؟ رضیہ نے جلدی سے اس کی تردید کی۔ میں نے صرف جان کہا ہے۔ میں نے امجد سے کہا چھوڑو یار اس بحث کو اور چائے بنا کر لے آؤ، اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے رضیہ کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ بولا ہاں بھائی، اب منشی غریب نے تو چائے ہی بنا کر پلانی ہے نا، تنخواہ جو حلال کرنی ہوئی۔ رضیہ حیرانی سے مستفسر ہوئی، کیوں گھر میں کوئی عورت موجود نہیں ہے؟ امجد بولا موجود ہے، مگر ہماری مہمان ہے مس رضیہ میر نیاز خان، اور اس سے تو ہم چائے بنوانے سے رہے۔ اس کی بات پر رضیہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی تم بھی بڑی شے ہو امجد بھائی۔ امجد مصنوعی بیزاری ظاہر کرتا ہوا بولا یا اللہ پھر وہی بھائی، اور چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ امجد کے جاتے ہی میں نرم لہجے میں مستفسر ہوا مس رضیہ اگر مائنڈ نہ کریں تو میں تشریف آوری کا مقصد جان سکتا ہوں؟ وہ بولی جانو صاحب، ایک تو میں معذرت کے لیے حاضر ہوئی تھی کہ کل رات میں غصے میں آپ کے ساتھ گستاخی کر بیٹھی اور نامناسب الفاظ سے پکارنے کے ساتھ ساتھ آپ پر حملہ کرنے کی جرت بھی کر بیٹھی۔ یہ آپ کا بڑا پن تھا کہ آپ نے جوابی کارروائی سے گریز کیا۔ میں حقیقت میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں مس رضیہ، وہ ایک وقتی اشتعال تھا جس سے مغلوب ہو کر آپ نے یہ قدم اٹھایا، مجھے بالکل برا محسوس نہیں ہوا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھینک یو عمر جان صاحب۔ شاید بات بات پر مسکرانا اس کی عادت تھی، یا اسے اس کے مسکرانے کی تباہ کاری کے بارے میں کسی نے بتا دیا تھا اور وہ جان بوجھ کر مخالف کو احساس محرومی میں مبتلا کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی۔ بولی دوسرا میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کو دعوت پر بلانا تھا۔ آج ہم نے حویلی میں ایک چھوٹا سا جشن منانے کا اہتمام کیا ہے، آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیڈی بھی آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، انہوں نے کچھ خاص امور پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے پوچھا مجھ سے کس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے؟ وہ بولی یہ آپ انہی سے پوچھ لینا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا اور یہ جشن وغیرہ کس سلسلے میں منایا جا رہا ہے؟ کہیں آپ کی منگنی وغیرہ کا چکر تو نہیں چل رہا؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولی منگنی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے اگر ایک بندہ مان جائے، ویسے جشن تو مقدمہ جیتنے کی خوشی میں منایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے معنی خیز لہجے میں ایک بندے کے مان جانے کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کون سا مقدمہ؟ وہ بولی کوہاٹ کے 2 خانوں کے ساتھ ہمارا زمینوں کا جھگڑا چل رہا تھا، وہ مقدمہ ہم جیت گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے اور مہمان بھی ہیں، لیکن ڈیڈی نے آپ دونوں کے لیے مجھے خصوصی طور پر بھیجا ہے۔ امجد چائے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کن 2 کے لیے آپ خصوصی طور پر آئی ہیں؟ میں اپنے علاوہ اور کسی کا نام آپ کے ساتھ نہیں سن سکتا۔ وہ حسب عادت مسکرائی، عمر جان کا نام بھی نہیں سن سکتے؟ امجد بولا یہ تو میرا دشمن نمبر 1 ہے۔ بہرحال چھوڑیں اسے، چائے لیں تاکہ آپ کو میری خوبیوں کا اندازہ ہو اور آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں۔ اس نے ٹرے سے کپ اٹھایا، کون سا فیصلہ؟ امجد بولا یہی جو آپ نے مجھے بھائی جیسے قاتلانہ نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بولی بھائی قاتلانہ نام ہے؟ وہ بولا تو اور کیا، پیار محبت عشق کا قاتل ہی تو ہے۔ اس کے انداز پر ہم دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ وہ چائے کی چسکی لے کر تعریفی لہجے میں بولی فینٹاسٹک بھائی، بہت اچھی چائے بناتے ہیں آپ تو۔ امجد چونکہ چینی دودھ وغیرہ پہلے ہی سے مکس کر کے لے آیا تھا، اس لیے ہم سب اپنے اپنے کپ پکڑ کر چائے پینے میں لگے تھے۔ ویسے بھی یہ عمرہ کے چونچلے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس طبقے میں شمار نہیں کیا تھا۔ امجد نے ایک مرتبہ پھر شگوفہ چھوڑا، کھانا اس سے بھی اچھا بناتا ہوں، خدا کی قسم عیش کرو گی عیش، اور وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے وہ یقیناً زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ بولی اچھا چھوڑیں بھیا اس مذاق وغیرہ کو، میں دراصل آپ دونوں کو کھانے کی دعوت
दावत देने आई थी और आप लोगों ने लाजमन आना है। इनकार मैं नहीं सुनूंगी। शाम को घर में ही रहना, आप लोगों के लिए गाड़ी पहुंच जाएगी। अमजद ने मेरी आंखों में झांका, मगर आज रात तो? वो मसनूई गुस्से से बोली, हाँ क्या है आज रात को? अमजद ने बहाना बनाया, हम पहले से कहीं पे मदू थे। वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता, बस आपने आना है। अमजद मेरी तरफ से रजामंदी का इशारा पाकर बोला, मगर एक शर्त पर। उसने पूछा, कौन सी? अमजद बोला, मुझे अमजद कहकर बुलाओगी या कम से कम माजू ही कह लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। वो शरारती लहजे में बोली, अगर मैं जानी कहकर पुकारूं फिर? अमजद बेसाख्ता बोला, आपके मुंह में घी शक्कर। और हम सब कहकहा लगाकर हंस पड़े। वो अचानक अपनी हंसी रोकते हुए बोली, और हाँ एक दिलचस्प बात बताऊं, मेरा ख्याल है कल आप लोगों ने वो दोनों बंदे पुलिस के हवाले कर दिए थे। अमजद ने मुंह बनाया, हाँ मगर इसमें दिलचस्पी की बात कौन सी है? वो बोली, अल्लाह के बंदे अखबार पढ़कर देखो, इंस्पेक्टर ताहिर ने बड़े सख्त मुकाबले के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। वो शब्बीर शाह नामी नाजिम के कातिल थे और पुलिस को हद दर्जे मतलूब थे। मेरे लहजे में हैरानी थी, कल रात को पकड़ा है, सुबह अखबार में भी आ गया। वो बोली, जी ऐसी खबरें अखबार वालों तक बगैर किसी ताखीर के पहुंचाई जाती हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया, हाँ ये तो है। बहरहाल हमने अपने सर से बला उतारनी थी सो उतार दी, बाकी पुलिस वाले जाने और उनका काम। वो खड़ी हो गई, अच्छा अब मैं चलूंगी। तो फिर शाम को आना तय हो गया। हम दोनों भी खड़े हो गए, हम भी चलते हैं आपको छोड़ने के लिए। वो रस्मी तकल्लुफ से बोली, नहीं आप तकलीफ न करें, मैं चली जाऊंगी। अमजद खुलूस से बोला, कोई बात नहीं, आप हमारी मेहमान हैं। वो बोली, शुक्रिया अमजद, सॉरी जबान पर चढ़ गया है। वो भाई कहते कहते रुक गई थी। अमजद इत्मीनान से बोला, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा। और हम सब एक मर्तबा फिर हंस पड़े। शाम को 7 बजे के करीब रजिया खुद गाड़ी लेकर हमें लेने पहुंच गई थी। हम दोनों ने तय किया था कि पार्टी के खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर ताहिर की सरकूबी के लिए उसके क्वार्टर की तरफ जाएंगे। दिन को रजिया को उसके घर छोड़कर हम दोनों ने वापसी पर उसके क्वार्टर की रैकी कर ली थी। पार्टी अटेंड करने के लिए मेरा दिल तो किसी खुसूसी तैयारी का नहीं था, मगर अमजद के इसरार पर मैंने 3 पीस सूट पहन लिया था। मेरे पास चूंकि शीतल के दिए हुए 3-4 सूट पड़े थे, इसलिए उनमें से एक सूट मैंने अमजद के हवाले भी कर दिया। हम दोनों के कदो कामत में कोई नुमाया फर्क नहीं था, इसलिए वो सूट अमजद को भी बिल्कुल फिट ही आया था। रजिया ने हमें सताइशी नजरों से घूरा। शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी पार्टी को रौनक बख्शने के लिए इतना एहतमाम किया। अमजद ने जवाब दिया, ये एहतमाम सिर्फ आपके लिए है, पार्टी वार्टी हम नहीं जानते। बोली, आप दोनों मेरे लिए तैयार हुए हैं? मैंने कहा, नहीं सिर्फ अमजद, मैंने ये एहतमाम पार्टी के लिए ही किया है। मेरा लहजा काफी खुश्क था। मेरी बात सुनकर वो वापस मुड़ते हुए मायूस लहजे में बोली, चलें? अमजद आहिस्ता से बोला, मैंने तो सोचा था सिर्फ शीतल ही बेवकूफ थी। मैं उसी के अंदाज में बोला, जितनी भी होंगी शहला से कम ही होंगी। वो बोला, शहला से कम? वो डॉक्टर है जानू साहब। कार का दरवाजा खोलती रजिया हमसे मुस्तफसिर हुई, मुझे कुछ कहा? मैं पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर बैठता हुआ बोला, नहीं हमारी आपस की बात है। अमजद भी मेरे साथ ही बैठ गया था। बोला, अपनी क्या रजिया जी, तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि इन कपड़ों में आप किसी और ही दुनिया की मखलूक लगती हैं। वो कार आगे बढ़ाते हुए हसरत भरे लहजे में बोली, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। उसकी कार के पीछे उसके मुहाफिजों की जीप भी चल पड़ी थी। अमजद बोला, इसके मूड पर न जाएं, ये पहले पहल इस तरह बेनियाजी दिखाकर लड़कियों को फांसता है। वो बोली, लड़कियों को क्या मतलब? इसके ताल्लुकात किसी और लड़की से भी हैं? अमजद जल्दी से बोला, कई लड़कियों से हैं, बहुत सी लड़कियों से। और रजिया बैक मिरर में तीखी निगाह से मेरी जानिब देखने लगी, मगर नाकाफी रोशनी की वजह से वो मेरे तासुरात देखने में नाकाम रही। मैं उनको बातें करते छोड़कर आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर बैठ गया। रजिया की निगाहें और रजिया का अंदाज़े गुफ्तगू मुझे जो पैगाम सुनाना चाह रहा था वो मेरे लिए नया नहीं था, मगर रजिया जैसी लड़की मेरी मंजिल नहीं हो सकती थी। सादिया के बाद अगर मैं किसी से मुतासिर हुआ था तो वो शीतल थी, लेकिन शीतल का भी मेरी जिंदगी में आना नामुमकिन था। मेरे जहन में सोच की एक लहर उठी, शायद अब तक उसने शादी भी कर ली हो। मेरे लिए वो कब तक इंतजार कर सकती थी, इंतजार भी ऐसा जो लाहासिल था। बहरहाल मैंने सर झटक कर इन सोचों से पीछा छुड़ाया। रजिया, शीतल या कोई भी हो, मेरी जिंदगी में चौधरी की मौत के बाद ही आ सकती थी। उस वक्त गाड़ी उनकी हवेली के गेट पर पहुंच गई थी। चौकीदार ने गाड़ी पहचानते ही गेट खोल दिया था। पूरी हवेली रंग बिरंगी रोशनियों से बकाए नूर बनी हुई थी। हवेली के वसी सहन में खूबसूरत सा स्टेज बनाया गया था। कार रोककर वो नीचे उतरी और हमें अपने साथ चलने का इशारा करके हवेली के अंदरूनी जानिब बढ़ गई। हालांकि मेहमानों के बैठने के लिए एक अलहदा नशिस्त गाह बनाई गई थी। वो उस वक्त जदीद तराश खराश की शलवार कमीज में मलबूस थी, जिसमें बदन के नशिब फराज छुपने की बजाय उजागर हो रहे थे। मैंने उसके चीख चीख कर अपनी तरफ मुतवज्जे करते नशिब फराज से निगाहें चुरा कर अमजद की जानिब देखा।
वो भी उस वक्त उसी तगोदौ में मसरूफ नजर आया। हम दोनों की निगाहें मिली और बेसाख्ता हमारे होंठों पर हंसी दौड़ गई। अमजद आहिस्ता से बोला, लिबास को छोड़ो, कमबख्त के चलने का अंदाज ही ऐसा है कि बुरके में भी अपनी तरफ मुतवज्जे कर दे। और मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। मेरी हंसी देखकर वो पीछे देखने लगी। क्या हुआ? अमजद ने कहा, कुछ नहीं, और वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई। जदीद अंदाज में सजा हुआ ड्राइंग रूम उबूर करके वो हमें दरमियाने साइज के कमरे में ले आई, जिसकी दीवारों के साथ मुख्तलिफ अनवा की किताबों के खूबसूरत शेल्फ रखे हुए थे। कमरे के दरमियान में एक कीमती सोफा सेट लगा हुआ था जो मुताला करते वक्त बैठने के काम आता। मीर न्याज खान उस वक्त उसी सोफे पर बैठा मसरूफे मुताला नजर आया। हमें देखते ही उसने किताब बंद करके अपने सामने मौजूद टेबल पर रखी और खुशामदीद, वेलकम, बखैर रागले कहता हुआ बाजू फैलाए उठ खड़ा हुआ। हम दोनों से फर्दन फर्दन मुआनिका करके उसने सोफे की तरफ इशारा किया। प्लीज तशरीफ रखें और गुड़िया तुम जा सकती हो। रजिया मुंह बनाते हुए वापस मुड़ गई। उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो भी हमारी गुफ्तगू सुनने की मुतमन्नी थी, मगर अपने वालिद के कहने पर बादल नाखास्ता उसे वापस जाना पड़ा। रजिया के कमरे से निकलते ही वो बैठता हुआ बोला, सबसे पहले तो मैं कल के वाक़े पर आपसे माजरत चाहता हूँ। आजकल के बच्चे जिद में आकर उमूमन वालिदैन के लिए मसाइल का बाइस बनते हैं। बहरहाल वो मसला आप दोनों की समझदारी की वजह से खुश उसलूबी से तय हो गया। मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी इसे अपनी अना का मसला नहीं बना लिया होगा। अमजद हैरत अंगेज शराफत से बोला, नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, रात गई बात गई, और वैसे भी आप हमारे बुजुर्गों की उम्र के हैं, आप हमसे माजरत न करें। आपको अपने बच्चों की गलती का एहसास है, इतना ही हम दोनों के लिए काफी है। वो बोला, थैंक यू मिस्टर अमजद। दूसरा, आप दोनों ने मेरी आज की छोटी सी तकरीब में आने की जहमत की, इसके लिए भी मैं दोनों का मशकूर हूँ। जवाबन हम दोनों सर हिलाकर रह गए। वो बोला, मिस्टर उमर जान, ये तो थी रस्मी बातें, अब आते हैं असल गुफ्तगू की तरफ। आपके और मेरे दरमियान चंद गलत फहमियों के बायस हालात बिगड़ते बिगड़ते रह गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम नादानिस्तगी में एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन गए, वरना दोनों अतराफ नाकाबिल तलाफी नुकसान होने का अंदेशा था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें एक दूसरे का जानी दुश्मन होने से बचा लिया। इलावाजी आपके घर वालों के साथ चौधरी अकबर ने बहुत जालिमाना और बेरहमाना सलूक किया है, और ऐसा काम चौधरी जैसा घटिया और बुज़दिल आदमी ही कर सकता था। कुछ अरसा पहले मैं उसके साथ रिश्ता भी जोड़ने वाला था, यहाँ तक कि गुड़िया के साथ उसकी मंगनी भी तय कर दी थी, मगर बाद में उसके मुताल्लिक तफसीलात जानकर मैं इस काम से बाज आ गया। वो एक लम्हा सांस लेने के लिए रुका और फिर दोबारा गोया हुआ। मुझे दरअसल इस इलाके में एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत है। इसी मकसद के लिए मैंने चौधरी अकबर से भी ताल्लुकात बढ़ाए थे, मगर वो मेरे काम का न निकला। अब इस कम उम्री में भी आपकी समझ बूझ देखते हुए मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कारोबार में शमूलियत इख्तियार कर लें। जहाँ तक ताल्लुक है चौधरी अकबर से बदला लेने का, तो वो मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। मैंने खनकार कर गला साफ किया, मलिक साहब, इस एतमाद और भरोसे का शुक्रिया, लेकिन इस सारी गुफ्तगू के दौरान आप एक काम की बात याद न रख सके, और वो ये कि मैं गंडापुर हूँ। आप भी गंडापुर हैं और गंडापुरों की अच्छी बुरी तमाम कदरों से वाकिफ होंगे। चौधरी अकबर मेरा दुश्मन है, उसे बदला लेने की इजाजत मैं अपने अलावा किसी को नहीं दे सकता। बाकी रही आपकी कारोबार के मुताल्लिक ऑफर, तो उसके बारे में मैं सोचूंगा, मगर चौधरी की मौत के बाद। मैं माजरत खा हूँ कि आपकी इतनी शानदार ऑफर को कबूल करने की पोजीशन में नहीं हूँ। बहरहाल मेरी तरफ से खुला इनकार भी मत समझो। अपने जरूरी काम जो कि चौधरी की इबरतनाक मौत है, उससे फारिग होकर मैं जरूर आपको कोई मुनासिब जवाब देने की पोजीशन में हूँगा। उसने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई। कोई बात नहीं मिस्टर उमर जान, मेरी बात का ये मतलब भी नहीं था कि आप अभी हाँ कर दें। घर जाकर सोचें, अपने दोस्त अमजद से मशवरा करें। बहरहाल अब उठें और चलें, ताकि बाकी मेहमानों को भी कंपनी दे सकें और कुछ ठंडा गर्म भी पी लें। हम दोनों उसके साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गए। रजिया ड्राइंग रूम में हमारी मुंतजिर थी। हमें देखते ही वो चील की तरह झपटी। डैड, मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ? मीर न्याज खान बोला, अगर थोड़ी देर मेरे साथ रहें तो। उसने मुंह बनाया, इतनी देर से तो आपके साथ हैं। वो बोला, ठीक है भाई, अब आप नौजवानों ने हम बूढ़ों को कहाँ खातिर में लाना है। वो खुशी से चहकी, थैंक यू डैडी, और मीर न्याज सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। बाप के जाते ही वो हमसे मुखातिब हुई, आए आपको अपना घर दिखाऊं, और हम उसके साथ बल्कि पीछे पीछे चल पड़े। हवेली दिखाकर शायद वो अपनी अमारत से मुतासिर करना चाह रही थी। बहरहाल हमने भी उसे मायूस नहीं किया और खुश दिली से उसके साथ घूमते रहे। तमाम हवेली घुमाने के बाद वो हमें अपने वसी और पुरतायुश बेडरूम में ले आई। उसने अपने जहाजी साइज बेड की तरफ इशारा किया, बैठे। कैसा लगा मेरा छोटा सा घर? अमजद ने कहा, घर तो बहुत अच्छा है, मगर एक चीज की कमी है। वो हैरानी से बोली, किस चीज की? अमजद ने कहा,
कहा खाने पीने की अशिया की। सुबह से भूखे प्यासे आपकी दावत के मुंतजर थे। आपने भी शायद हवेली दिखाने की दावत दी थी, वो भी नादिम हो गई। ओ सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। चलें, शायद बाहर खाना शुरू भी हो चुका हो और हम अंदरूनी हवेली से बाहर निकल आए। तमाम लोग उस वक्त खाने की पुरतकल्लुफ सजी हुई टेबलों की तरफ बढ़ रहे थे। हम भी उनके साथ शामिल हो गए। खाने के दौरान रजिया मुसलसल मेरे साथ चिमटी रही और खाने की मुख्तलिफ डिशें उठा उठा कर मेरे आगे धरती रही। गुलरेज भी एक दो दफा नजर आया मगर निगाहें चुरा कर साइड पर निकल गया। खाने के बाद नाच गाने का प्रोग्राम भी था। मेहमान स्टेज के सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए जबकि कुछ चहलकदमी करने लगे। मैंने कहा मिस रजिया, अब अगर हमें इजाजत दें। उसने मुझे घूरा। किस बात की? मैंने कहा वापसी की। बोली कोई वापसी नहीं होगी, आज तुमने मेरे साथ ही रहना है। और हाँ, अगर पीने पिलाने का शौक रखते हो तो उसका बंदोबस्त भी है। इसके अलावा नाचने गाने वालियां भी आई हुई हैं। प्रोग्राम के खात्मे पर अपनी पसंद के साथ बकिया रात गुजार सकते हो। उसकी घटिया गुफ्तगू सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। शट अप मिस रजिया, तुमने हमें इतना सस्ता समझ रखा है। चलो अमजद चलते हैं। मैंने अमजद का हाथ पकड़ा और हम दोनों मीर नियाज खान से इजाजत लिए बगैर बैरूनी गेट की तरफ चल दिए। मेरी झिड़क सुनकर वो हक्का बक्का अपनी जगह साकिन हो गई थी। हम उस वक्त बाकी लोगों से साइड पर थे, इसलिए कोई हमारी तल्ख गुफ्तगू नहीं सुन सका था। गेट पर खड़े मुहाफिजों ने हमसे कोई तारुज न किया। हम जैसे ही गेट से निकले, अमजद मुस्कुराकर बोला, बस अब गुस्सा थूक दो। उस गरीब ने अपनी हाई सोसाइटी से मुतारिफ करवाने की कोशिश की थी। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे ही इन लोगों से जान छुड़ाना चाह रहा था। खामखा गले पड़ रही है और इसका बाप भी अपने नाजायज कारोबार में हमारी शराकत का मुतमन्नी है। दिमाग खराब हुआ है साले का। अमजद ने कैकहा लगाया, साले का नहीं सुसर बोलो, और मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। हम हवेली से निकलकर थोड़ी दूर ही आए होंगे कि अचानक हवेली से एक कार निकलकर आंधी और तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ी। हमारे करीब आते ही कार रुक गई। उससे बरामद होने वाला चेहरा रजिया का था। वो बुझे चेहरे के साथ हमारे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी जान, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। मैंने कहा आइंदा ऐसा घटिया मजाक कम से कम मेरे साथ मत करना। उसने कानों को हाथ लगाया, मेरी तौबा। अमजद साहब, आप भी मेरी सिफारिश करें ना। वो बोला कोई बात नहीं मिस रजिया, जानू खफा नहीं है, बस वक्ती इश्तियाल है, कल तक ठीक हो जाएगा। उसने सर झटका, कल तक ठीक हो जाएगा? कल तक पता नहीं है मुझ पर क्या गुजरेगी। मैंने कहा ये आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरी कोशिश थी कि वो किसी तरह खफा होकर हमारी जान छोड़े, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी कि वो वापस चली जाएगी। वो बोली तो बाबा सॉरी तो कर दिया है, और क्या पाँव पड़ जाऊं? ये लो यूं भी कर लेती हूँ। वो नीचे की तरफ झुकी मगर मैं जल्दी से पीछे हो गया। क्या कर रही हो बेवकूफ? वो अफसुर्दगी से बोली, वही जो आप चाहते हैं। मैंने उससे जान छुड़ानी चाहिए। अच्छा आइंदा ख्याल रखना, अब हमें जाने दो, फिर कहीं मुलाकात होगी। वो खिल उठी, शुक्र है खुदा का आप राजी हो गए। चलो बैठो गाड़ी में, मैं आपको छोड़ाती हूँ। मैंने कहा शुक्रिया, हम चले जाएंगे। वो बोली इसका मतलब है आप अभी तक नाराज हैं। मैं कार का दरवाजा खोलकर बैठ गया। चलो बैठो यार, इसने ऐसे जान नहीं छोड़नी। वो ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बैठते हुए बोली, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। रास्ते में भी उसकी जबान नॉन स्टॉप चलती रही, यहाँ तक कि हम अपने घर पहुँच गए। उसने हमें खुदा हाफिज कहते हुए गाड़ी वापस मोड़ ली। अमजद ने उसे नसीहत करते हुए कहा, बॉडीगार्ड साथ नहीं है, एहतियात से जाना। और उसने सर हिलाते हुए अपनी कार आगे बढ़ा दी। फिर बोला, अब क्या इरादा है? मैंने कहा लिबास बदल कर चलते हैं, क्वार्टर के बाहर ही उस कमीने का इंतजार करेंगे। और अमजद ठीक है कहते हुए उठ खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर बाद हम कपड़े बदल कर मुंह पर मफलर लपेटे इंस्पेक्टर ताहिर के क्वार्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उसका क्वार्टर थाने के करीब ही था। वो शादीशुदा था और अपने बीवी बच्चे उसने शहर के अंदर एक शानदार कोठी में रखे हुए थे। वो हमेशा जुम्मे के दिन पिछले टाइम घर जाता, हफ्ता इतवार घर में गुजार कर वो सोमवार की सुबह वापस आ जाता। अलबत्ता इस दौरान कोई खास मसला दरपेश हो जाता तो थाने वाले उसके पीछे फोन कर देते, जिसकी बिना पर वो फिलफौर वापस पहुंच जाता। हफ्ते के बाकी अय्याम वो अपने क्वार्टर में ही गुजारता। रिश्वतखोर होने के अलावा वो शराब नोश और दूसरे बहुत से गलत कामों में भी मुलव्विस था। उसके मुताल्लिक ये सारी मालूमात मुझे नजरगुल से मालूम हुई थी, जो उसके क्वार्टर तक जाते हुए मैंने अमजद के गोश गुजार कर दी थी। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।